Very good afternoon to my class 10th students. In this video we are discussing about the next life process mechanisms. It is known as the circulatory systems. So now let's quick start the video. Okay, so in a circulatory systems including the many things, many points. First is the transportation. So what is the definition of transportation? In a simple way, the definition of transportation is a flow of blood and digestive food materials one organ to different organ. It is known as the transport. Okay, we are discussing about the transport in a human beings. So what's write down in the slides? Transport in a human beings done by the circulatory systems. We are already discuss about this. सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म्स को प्रोसेस करते हैं. सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द circulatory systems. The circulatory system in human beings mainly consists of the blood vessels and the heart. It is responsible for a supply of oxygen, nutrient, removal of the carbon dioxide and other exactly product. It is also have to fight off the infection of heart. What's the mean of this sentence? It means the circulatory system is mainly responsible for circulate the materials for essential of human body. First thing. Second things, how many type of the circulatory system in found of living beings? कितने टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम लिविंग बींग्स में पाया जाता है? सो मेनली टू टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स. फर्स्ट इज closed circulatory system, second is open circulatory system. So what's the definition? Close and open. So first we are discussing about the open circulatory systems. What is the open circulatory system? It is a lower कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स लिविंग बींग्स में पाया जाता है. ये इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे ब्लड है, ब्लड का फ्लो ओपन क्वार्टर्स के फॉर्म पे होता है, छोटे छोटे गड्ढे के फॉर्म्स. ब्लड में कुछ बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे क्वार्टर्स के फॉर्म पे, जिसमें ब्लड्स फ्लो करता है ओपनली. मीन्स इसके लिए किसी भी प्रकार की वेसल्स की जरूरत नहीं होती, पाइपलाइन की जरूरत नहीं होती है. इस वजह से इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. And what is the closed circulatory systems? So closed circulatory systems with the circulation via vessels. वेसल्स ट्यूब्स के थ्रू जब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पूरी होल बॉडी पे, तो बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो इन अ ह्यूमन बींग्स फाउंड इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाई? बिकॉज इन अ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ अ सर्कुलेटरी systems. I'm already sent the detailed video of heart related to heart. Clear है? I know you will watch the videos. Okay, now next slide. The muscular organ which is located near the chest, slightly toward of left in the thoracic region. What's the means muscular organ? We are discussing about the heart. Heart is a muscular organ. Where is the located? It is located in slightly toward left side of the thoracic cavity. What is the thoracic cavity? It means we are chest region. हमारे chest region में left side पर थोड़े से ही left side पे heart पाया जाता है. Clear है? आप इतना एक सिंपल वे पे समझ लो कि हार्ट जो हमारा लोकेट होता है लेफ्ट साइड पे लोकेट होता है, बट स्लाइटली लेफ्ट साइड पे, पूरा लेफ्ट में नहीं होता है. ठीक है, सेंटर से स्लाइटली लेफ्ट साइड पे लोकेट होता है. द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को. ठीक है, सर्कुलेट करने के लिए पंप करता है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. हार्ट में हाउ मेनी चैम्बर्स इन द हार्ट? 4 चैम्बर विच आर इन्वॉल्व टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygenated and deoxygenated blood. So we are already discussing about the both terms. First is oxygenated. It means blood have to oxygen. It's known as the oxygenated. It means अगर blood में oxygen dissolve है तो वो oxygenated होगा. And deoxygenated, it means blood without the oxygen. First ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड. फिर ऑक्सीजन की जगह में इस टाइम पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है. इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड को हम दो अदर वर्ड से जानते हैं. ऑक्सीजनेटेड को हम प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर ब्लड के नेम से भी जानते हैं. द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड टू आर्ट्रिया. इट्स मीन्स हार्ट हैव अ 4 चैम्बर. अपर 2 चैम्बर्स,
ऊपर के दो चैम्बर्स हैं जिसमें टू पार्ट्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट्स, बोथ आर नोन एज द आर्ट्रिया, वेयर इज द लोअर टू चैम्बर इज नोन एज द वेंट्रिकल्स। लोअर्स नीचे के दो चैम्बर्स होंगे, इट इज नोन एज द वेंट्रिकल्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में इस जीएफ्स के थ्रू हम मूवमेंट ऑफ द ब्लड करेंगे या ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड इन द हार्ट। सो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट चैम्बर। सो आप बहुत ही सिंपल वे पे आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हार्ट हैव 4 चैम्बर। फर्स्ट इज अ, जस्ट वेट, ओके, नाउ ये आप छोटा सा ब्लू कलर का देख रहे हैं, दैट इज अ फर्स्ट अपर चैम्बर, इट इज नोन एज द राइट आर्टियम एंड हेयर इट इज लोकेटेड टू लेफ्ट आर्टियम एंड it is the large chamber, it is known as the right ventricles and here to left ventricles. Okay, here presented are two colors, blue and red. Blue color is presented to deoxygenated blood. Blue color is represented to deoxygenated blood, but red color is presented oxygenated blood. So we are simply understand deoxygenated blood, impure blood found in right side. ओके, वेरी सिंपल वे पे जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, हमारा पाया जा रहा है राइट साइड पे, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इनटू लेफ्ट साइड्स। क्लियर है? ओके, सो नाउ दैट इज द फ्लो ऑफ अ हार्ट. Next, we are discussing about the blood vessels. So blood vessels carry blood throughout of the body. It means हमारे बॉडी पे जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है. There are 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स. 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं. फर्स्ट इज द आर्टरीज, veins एंड ब्लड कैपिलरीज. व्हाट इज द ब्लड कैपिलरीज? आर्टरीज, वेन्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज इज स्मॉल थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, लाइक हमारे स्किन्स. आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स आर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Arteries is carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. Gaseous exchange take place between the blood and cells at the capillaries. अब capillaries क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, capillaries is very thin pipe like structures and capillaries के थ्रू क्या होते हैं? Gaseous exchange होते हैं. Okay, so now that is the second point.